Good morning everyone. Today we discuss on civics chapter 1 power sharing. In previous classes we discuss on power definition of power sharing, why power sharing, story of Belgium, story of Sri Lanka, accommodation in Belgium and also majoritarianism in Sri Lanka. In this class we discuss on forms of power sharing and also why power sharing is desirable. My young energetic, listen carefully. This is second lecture of power sharing. In this class we discuss on why power sharing is desirable. Why power sharing is desirable. क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग. ओके. सेकेंड टॉपिक फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. Let's start. Why power sharing is desirable? Dear student, power sharing is desirable due to two reason. ये दो कारणों से पावर शेयरिंग जो होता है वो जरूरी होता है. फर्स्ट रीजन इज प्रूडेंशियल रीजन and second one is moral reason. Dear student, in prudential reason it reduce conflict between different social group. It reduce conflict between different social group. It reduce conflict between different social group. बेटा इसमें क्या होता है कि पावर शेयरिंग आपसे क्वेश्चन रहेगा और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है. और इस 3 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है. एवरी टाइम ये क्वेश्चन आते रहता है. तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझो कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है. पावर शेयरिंग जरूरी है ड्यू टू 2 रीजन. फर्स्ट वन इज प्रूडेंशियल, सेकंड वन इज मोरल रीजन. बेटा इन प्रूडेंशियल रीजन हम कह सकते हैं इट रिड्यूस कंफ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप. जो हमारी सोसाइटी में डिफरेंट सोशल ग्रुप रहती है उसके बीच के कंफ्लिक्ट को ये दूर करने का काम करता है. तो ये है इसका प्रूडेंशियल रीजन. एंड अदर वन इज मोरल रीजन. और मोरल रीजन में आप बोलोगे सर इट इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. यानी कि जो डेमोक्रेसी होती है जस्ट इसी पे बेस्ड होती है. क्या होती है? अगर जहां पे डेमोक्रेसी है वहां पे बेटा पावर शेयरिंग है. और पावर शेयरिंग के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि व्हेन पावर शेयरिंग यानी कि यहां पे पावर का शेयर होगा. यानी व्हेन पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट देन वी कैन से दैट दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड पावर शेयरिंग. ओके. So power sharing is desirable due to 2 reasons. First one is prudential and second one is moral reason. In prudential reason we can say that it reduces conflict between different social group, and in a moral reason it is very spirit of democracy. Okay. Our next topic is forms of power sharing. Next topic is forms of power sharing. Forms of power sharing. Forms of power sharing today. In forms of power sharing we discuss on horizontal form of power sharing. Second one is vertical form of power sharing. Third one is power is may share among different social group. Power
may share among different social group and fourth one is power may share among different political parties. Power may share among different political parties. ओके, देन हम लोग यहां से इसको एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, first one is horizontal form of power sharing. First one is horizontal form of power sharing. Horizontal form of power sharing. बेटा, in a horizontal form of power sharing, power may share among different organs of government. Power may share among different organs of government. Power may share among different organs of government means legislature, executive and judiciary. Executive are of two types: permanent executive and political executive. Political या temporary executive. Okay. So power may share among different organ of government means horizontal form of power sharing. Beta, this forms of power sharing also called check and balance system. Also called check and balance system. बैलेंस सिस्टम, सच में इसे हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। क्यों इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम इसलिए कहते हैं कि अगर यहां पर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, एग्जीक्यूटिव उसे इंप्लीमेंट कर रहा है, अगर वहां पे प्रॉब्लम हो रही है तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर के वर्क को देखने के लिए और एग्जीक्यूटिव की इंप्लीमेंटेशन को देखने के लिए कहीं ना कहीं जुडिशियरी से चेक कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जुडिशियरी क्या है, इसको चेक करते रहती है कि अगर बाय द वे अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुआ इसके इंप्लीमेंटेशन में या लेजिस्लेचर ने कोई चीज बनाया, अगर वो गलत चीजें हैं तो जुडिशियरी उसको चेक कर सकती है। अगर वो चेक करने के बाद अगर चाहेगी कि नहीं ये हमारे सिटीजन के लिए ठीक नहीं है तो उसको या तो कुछ सजेशन देकर उसे कहेगी कि आप इसको चेंज कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। सच में चेक करती है तो चेक कौन करती है, जुडिशियरी चेक की, ठीक ना। या अगर इसको और भी चेक एंड बैलेंस कैसे बोल सकते हैं तो बेटा लेजिस्लेचर में जो रूलिंग पार्टी होती है, अगर रूलिंग पार्टी अगर कोई लॉ बनाई और लॉ बनाने के बाद अगर रूलिंग पार्टी ने लॉ बनाया, रूलिंग पार्टी को छोड़ो, हम लेजिस्लेचर में ही देख लेते हैं एमपी एमएलए को। एमपी को देखते हैं, अगर एमपी ने पार्लियामेंट में बैठकर अगर कोई लॉ को पास आउट किया तो कहीं ना कहीं जो लॉ अगर ये बना रहे हैं तो इस लॉ के लिए कहीं ना कहीं वहां पे जो अपोजिशन पार्टी होती है इसका भी तो इनको सपोर्ट मिलना होता है। यानी कि जितना जो 543 सीट प्लस 2 इतना जो सीट है, इन सीटों में कि जितने जो मेंबर होते हैं इसका एक पार्ट होता है ना कि 2/3 मेजोरिटी से इसे पास आउट होना चाहिए। तो भाई पास आउट कब होगा, तो कहीं ना कहीं इनका भी तो मेंबर इसमें सपोर्ट चाहिए। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस हुआ ना कि अगर हम कोई गलत बनाना चाहते हैं तो अगला मुझे चेक कर रहा है कि नहीं ये गलत नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि बेटा ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग आल्सो कॉल्ड चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट वन इज वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. सेकेंड वन इज वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग, ये वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, इसको जरा ध्यान से समझो. वर्टिकल, इन वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, पावर में शेयर अमॉन्ग, पावर में शेयर अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट. डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पे पावर की शेयरिंग होती है. कैसे भाई? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. हुआ ना? अच्छा एक बात बताओ, फेडरलिज्म भी तुमने पढ़ा होगा. फेडरलिज्म नेक्स्ट चैप्टर है, आपको पढ़ना है. तो उसमें फेडरलिज्म को डिफाइन करेंगे कि इन फेडरलिज्म में होता है कि व्हेन पावर इज डिवाइडेड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट. तो इसको हम बोल सकते हैं कि वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को हम बोल सकते हैं कि सर ये फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पावर शेयरिंग है. फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पावर, ऑफ कोर्स फेडरल स्ट्रक्चर है. पावर का डिवाइडेशन है ना, सेंट्रल से किसमें, सेंट्रल, स्टेट और लोकल में पावर की डिवाइडेशन है कि नहीं. और पावर की डिवाइडेशन है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट. फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को क्या बोल सकते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट. हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को क्या बोल सकते हैं, चेक एंड बैलेंस सिस्टम. तो याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है. अब अगला देखते हैं. अगला है अब नेक्स्ट टॉपिक, पावर में शेयर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप. यानी कि डिफरेंट सोशल ग्रुप को देखिए. डिफरेंट सोशल ग्रुप, बेटा डिफरेंट सोशल ग्रुप में कैसे, तो लिंग्विस्टिक ग्रुप, ऑफ कोर्स लिंग्विस्टिक ग्रुप. जैसे आपके एग्जांपल में कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में बना था. कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, तो कहीं ना कहीं सोशल ग्रुप में पावर की डिवाइडेशन हुआ कि नहीं. सोशल ग्रुप में पावर की डिवाइडेशन मींस आपने बेल्जियम में पढ़ा था. बेल्जियम में एक सेपरेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था जिसमें डच, फ्रेंच, जर्मन, इन सभी से रिलेटेड जो अपने कल्चर को, कस्टम को और लैंग्वेज को, कल्चर कस्टम लैंग्वेज, इन सभी को फोस्टर करने का काम एक इनके लिए सेपरेट से मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे. तो बेटा क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ इन बेल्जियम एक डिफरेंट सोशल ग्रुप का ये पावर शेयरिंग है या नहीं है, ऑफ कोर्स है. अब तीसरा इसका नेक्स्ट है फोर्थ, पावर में शेयर अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. पावर में शेयर अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. पावर में शेयर अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ऑफ कोर्स पावर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी में भी शेयर की जाती है. जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे प्रेशर ग्रुप, गवर्नमेंट पे प्रेशर बना के रखती है ना, प्रेशर ग्रुप हो गई. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये बीजेपी है, कांग्रेस ने यहां पर ये क्या है, अपोजिशन है एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए. और ये क्या है, बीजेपी मेजोरिटी से है और इसने क्या फॉर्म किया, गवर्नमेंट फॉर्म किया ना. तो बेटा ये गवर्नमेंट अपना मन की थोड़ी कुछ चला सकता है. ये अपोजिशन क्या करती है, इनके हर एक वर्कआउट को चेक करते रहती है ना. कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी तो पावर है ना. तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी में पावर शेयरिंग है कि नहीं. यानी कांग्रेस ऑल्सो गेन पावर टू चेक वट एवर द बीजेपी वांट टू पास आउट एनी टाइप ऑफ लॉ, एनी टाइप ऑफ रेगुलेशंस. तो इसको ये चेक कर सकता है ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके पास पावर है. तो पावर में शेयर अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं है ना. तो आपने देख लिया कि पावर शेयरिंग में फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को अपने 4 पार्ट में देखा.
पहला देखा आपने पावर में शेयर अमंग हॉरिजॉन्टल फॉर्म, यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। सेकेंड वन इज वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। थर्ड वन इज पावर में शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल्सो पावर में शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो चैप्टर 1 है पावर शेयरिंग, ये कंप्लीट है। ठीक है, और इसमें जो भी डाउट है, अब आपका काम क्या होगा कि बुक का एक एक लाइन बाई लाइन पढ़ना है, और एक एक लाइन बाई लाइन पढ़ के जो डाउट है उसको सर्कल करो। ठीक है, जो डाउट है उसे सर्कल करो, और सर्कल करने के बाद उस डाउट का ऐसा करना है कि जो भी डाउट होती है वो सर के व्हाट्सएप पे आप उसको भेजना, और उस डाउट से रिलेटेड जो होना है उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम सॉल्व करके सर को भेजेंगे, सर आप लोग को भेज दिया करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी क्लासेस बढ़िया तरीके से चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अब आगे जो है वो फिर हम हिस्ट्री लेकर चलेंगे, और हिस्ट्री में चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा रखा है, चैप्टर 1 में नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें करीबन 2 टॉपिक हमने निकाल रखे हैं। तो हो सके तो आज ही इसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, इसको